Welcome back to Accounts is Easy, and we are in the fourth part of the video showing the solution to ISC 2024 paper. So accounts का 2024 का पेपर है ये, और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, both the subparts, both the options given here, and question 10 also, both the things. So get ready to know the answers. Question 9 काफ़ी सिंपल है. इसमें बोला गया पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड. नंबर 1, परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि. ये अप्रोप्रिएशन है, फंडामेंटल का सम है. एंड रवि इज अ पार्टनर हु हैड विड्रॉन कैपिटल अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1st of October. उसने विड्रॉ किया 20,000. सो कैपिटल विड्रॉ करने का एंट्री क्या होता है, चलो बताओ. दिस इज क्वेश्चन 9 सब पार्ट 1 एंड उसका भी सब पार्ट ए. परमानेंट विड्रॉल मेड बाय रवि. तो रवि इज कैपिटल डेबिट, इट शुड डिक्रीज इज कैपिटल. रवि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 to cash, or you can put bank also, not a problem, cash or bank. This is not to be debited to Ravi's drawings account, because रेगुलर ड्राइंग के लिए हम ड्राइंग्स अकाउंट यूज करते हैं. विड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी हैपनिंग थ्रू कैश, राइट, एंड कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 46,360. इट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड. एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम. तो सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, मतलब इक्वल होता है. And profits distribute, how do we do that? Profit and loss appropriation account. Debit the entire profit 46,360. There are two partners, Tanuj and Ravi. Tanuj's capital, Ravi's capital. This is a fluctuating capital method. So half will be 23,180. Done. This is the second one. And then you've been asked adjusting entry for commission due to Ravi. Commission due to Ravi. पार्टनर को कमीशन मिल रहा है. ड्यू करने का मतलब एडजस्टिंग एंट्री पास करने बोला है. क्लोजिंग एंट्री देने से मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है. एडजस्टिंग एंट्री Ravi's commission, you don't have to calculate Ravi's commission because it is already given to you 10,000 in the sum. 2, किसको देते हैं ये? Partner's capital. So this is Ravi's capital. Then let's come to the second part. सेकेंड पार्ट का भी ABCD है. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू तनुज एंड रवि. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बड़ा सिंपल होता है. वन ऑफ द पार्टनर्स तनुज हैड इन द बिगिनिंग 1,50,000 और इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो उसका कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है. ड्यूरिंग द ईयर इट्स कंप्लीटली द सेम. सो देयर इज नथिंग मच हियर. सो इट्स स्ट्रेट अवे for Tanuj, IOC is equal to 1,50,000 into 10%, 15,000. And for Ravi the initial capital था 1 lakh, but it changed. Ravi has withdrawn permanently from his capital 20,000. तो वो 1 लाख से कितना हो गया? 80,000 for the last 6 months. So for Ravi we will have to break it as on 1 lakh for 6 months plus on 80,000 for another 6 months. Common क्या है यहाँ पे? Rate of interest 10% divide by 12 है ना. तो ये वाला मेथड लगा लो और ये तुम्हारा आ जाएगा 9,000. So Ravi's interest on capital is 9,000. 6 months on 1 lakh and the remaining 6 months after withdrawal on 80,000.
Now you've been asked next one, commission allowed to Tanuj. तनुज का कमीशन कैसे निकालेंगे? The sum says Tanuj is to be allowed a commission of 5% of the trading profit या net profit, trading profit after charging his commission. तो after charging commission है, trading profit is given as 84,000, meaning this is before charging his commission. So 84,000 is this, और कुछ दिया नहीं है ना, तो we assume this is before charging commission. We have to provide for all of this. Okay, तो 84,000 and rate of commission is 5, तो 105 into 5, ये तो straight formula से ही आ जाएगा. We know this formula and this comes to 4,000. So इसका commission हो गया 4,000. Last is interest on drawings charged from Tanuj. I am writing it here. ये तो cut हो जाएगा frame से. So interest on drawings for a partner who is withdrawing how much? 6,000 at the end of every quarter. 6,000 end of every quarter मतलब into 4 times into rate of interest is 4% into average period कितना होता है? end of quarter है तो 5.5 by 12. alright, so इसका आ गया आंसर तुम्हारा 360. This is interest on drawings for partner Tanuj. Done. इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता था, है ना? ना यहाँ पे अकाउंट बनाना है, ना पार्टनर कैपिटल, ना कोई स्पेशल एडजस्टमेंट दिया है. The council has been really very very merciful, है ना? पिछले बैच के बच्चे ना बिल्कुल वो आग बबूला हो रहे होंगे. They would be complaining that, you know, how come this year's paper is so much better, easier. We all have got, you know, difficult papers to answer. चलो इसका और वाले में चले जाते हैं हम लोग अभी. So question 9. Amit and Iqbal are partners. Their partnership deed contained the following. तो ये सब दिया है और additional information about drawings, borrowing, loan, etc. सब दिया. Divisible profits to be credited. Give closing journal entry for interest on loan due from Amit. Amit had borrowed from the firm, so the firm will take interest from Amit, income for this. And इसका closing entry बोला है, adjusting entry नहीं. दोनों में difference है, right? Closing, adjusting. तो interest को close करना है तो कौन से account में डालेंगे? PL account में, PL appropriation में नहीं डालना है. And since this is an income, we will debit interest on loan from Amit to profit and loss. तो इसका ये जो सब part क्या है? 1. उसमें आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन टू, अच्छा लोन टू हमने लोन टू दिया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, अब इसका एंट्री बोला है तो अमाउंट के साथ ही देना होगा. चलो लेट्स सी. Borrowed from the firm on 1st July 10,000. 1st July को 10,000 इस पे borrow किया है and the rate was 8% per annum for the interest. तो हम कैसे calculate करेंगे इसको? मैं पे calculation दिखा दे रहे हैं. into 9/12 हो जाएगा पीरियड. जुलाई से है मार्च तक 8% इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 600. तो ये हो गया तुम्हारा 600 रुपीज इंटरेस्ट, फाइन, फॉर 9 months एट द रेट 8%. अब तुमको बनाने बोला है पार्टनर्स कैपिटल एंड यू हैव टू फाइंड द ओपनिंग बैलेंसेस. ओपनिंग बैलेंसेस आर नॉट गिवन, क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन. ना ओपनिंग बैलेंस के लिए ऑफ कोर्स आई डोंट नो ऑन विच साइड it will be coming, so I leave the first line on both the sides.
so that opening capital balances I can write there. Opening capital balance तो opening beginning में लिखते हैं ना ऊपर में. So we will leave space one line for that, and one meaning on both sides. Debit भी हो सकता है, credit भी हो सकता है. Okay, this is Amit and Iqbal. AI, artificial intelligence. Okay, चलो जल्दी जल्दी जो है सब डाल देते हैं. Drawings made on 1st May. Iqbal 30,000. Drawings किधर आएगा? इधर. To drawing. This is regular drawings, so drawings account. Oh, I am supposed to leave one line here, right? चलो एक लाइन छोड़कर I am putting drawings 30,000. Then borrowed वाला तो यहाँ नहीं आएगा, बस आपका interest ज़रूर आ जाएगा. Interest adjusting entry would be I am supposed to take that interest, so interest on loan to Amit 600. This you need to charge to the partner, and partner के capital account में debit हो, इसमें कोई loan account नहीं होगा, remember? Okay. Then divisible profits जो है वो 9,000 credit हुआ है दोनों. Divisible profit by PL appropriation 9,000 and 9,000. Appropriations क्या क्या मिला था? Salary है. Amit to get a salary of 1,000 per month. Per month, so for entire 12 months, Amit 12,000. Partner's salary. And Iqbal to get an annual commission of 10,000. Okay. Partner's commission 10,000. Iqbal is getting. ये हो गया, ये भी मिल गया. अच्छा, ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा. ड्राइंग्स आर ऑन 30,000 on 1st May, and interest on drawings is to be charged at 6% per annum. ये जो 30,000 विड्रॉ किया, Amit has not withdrawn anything. ये जो 30,000 निकाला है उसने, उस पे तुमको you have to charge at the rate of 6% per annum for how many months? It's on 1st of May, बस अप्रैल छोड़ दो, मतलब 11 months हो गए. You will be getting interest as 1650. So to interest on drawings 1650. So we have debited interest, इधर credited salary, commission, interest on loan हो गया, and drawings हो गया, divisible profit हो गया. So we have put everything here. Yeah, not left anything. Now we can find out the closing balance is also given, right? 75,000. Amit, it's nothing mentioned, credit debit. So assumed credit. Credit balance है मतलब obviously credit ज़्यादा है. तो credit ज़्यादा है, यहाँ पे balancing figure इस तरफ आएगा अमित का. Balance carried down 75,000 ये है. And Iqbal has a debit balance of 10,000 at the end. तो डेबिट बैलेंस कहाँ आता है? बैलेंस कैरी डाउन इधर. अब तुम इनको टोटल करो and find out what is the opening. I can see this side is more. This is 75,600 और उससे माइनस करो 21,000. So it will be 54,600 by balance brought down. Opening balance हो गया अमित का. इकबाल 31,650 है यहाँ पर, which is more than the other side. 31,650 है ना, and that side it will come to, we minus this 2,650 ये. Okay, but addition वगैरह check कर लेना. This is how it will go, and question 9 का second part is also done. Now the next number, question number 10, subpart 1. Not subpart 1, option 1, sorry. Okay, now this is in the books of Gamma Limited.
तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड, ये सब बस होना चाहिए. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू फॉर्मेटिंग डिटेलिंग. ओके, द कंपनी हैड इशूड 20,000 shares, but it has received applications for 25,000 shares. तो 25,000 के हिसाब से मिलेगा. एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज 2, तो 50,000 आ गया तुम्हारा फर्स्ट एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. व्हेन आई ट्रांसफर दिस अमाउंट, it is said all excess application money was refunded. Okay, so equity share capital में सिर्फ 20,000 जो शेयर इशू हुआ है उसके हिसाब से जाएगा 40,000, एंड refund मतलब to bank on the remaining 5,000 applications are rejected, so the 10,000 goes refund. Entire 50,000 is debited here. All right. Then allotment will be due on 1/1/11/22. Equity share allotment, कोई प्रीमियम कुछ नहीं है. Equity share capital, this is 60,000. 60,000 कैसे आया? It's 3 per share on allotment, so 20,000 into 3. This is due. Then when we receive, it is said allotment के साथ there are certain shareholders who have paid in advance the first and final call, and there are certain shareholders who have failed to pay the allotment money. तो यहाँ calls in arrears और calls in advance दोनों ही आ जाएगा. तो calls in arrears will be on 20 shares. Okay, and कितना नहीं मिला? allotment में नहीं मिला, तो ये 60 rupees नहीं मिला. And to equity share allotment, the entire amount due 60,000. Now calls in advance also. अब इसको तुम चाहो तो you can pass separate entries. बैंक to calls in advance अलग से कर लो, no problem at all. You have received on 30 shares the first and final call also, so you received 150 in advance. So 60,000 plus 150 minus 60 rupees. If the bank will have 60,090 rupees debited to it. This is the receipt of allotment money for 1st November में हो गया. Then we will make the first and final call due. वो था तुम्हारा कितना? 5 rupees. So 1 lakh. तो 1 lakh तुमको ड्यू था, और जब मिला so you have to take care again of this calls in arrears and calls in advance getting reversed. All right. Why reverse? Because अब ये कोई advance नहीं है. It's no more in advance. Calls in advance gets debited. So this due entry, ये कब ड्यू था? 1st March. ठीक है, उस टाइम का एंट्री है, और बैंक में पैसे आएंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड टू कॉल्स इन अरियर्स बिकॉज दिस डिफॉल्टर पेज अलोंग विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो जितना भी पहले कॉल्स इन एडवांस में था वो यहाँ डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स इधर क्रेडिट हो जाएंगे. देन बैंक में कितना आएगा? बिकॉज हियर इट इज 1 lakh. सो 1 lakh plus 60 minus 150 आ जाएगा 99910. तो चेक कर लो. ऑलराइट, सो दिस इज द रिसीट ऑफ फाइनल कॉल. देन इट इज सेड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो है वो हम चार्ज करें कॉल्स इन अरियर्स पे, नॉट इन एडवांस एज पर द प्रोविजंस ऑफ टेबल एक्ट.
AOLF क्या बोलता है भाई? It says interest on calls in arrears to be charged at 10% per annum by default. और interest on calls in advance होता तो 12% होता, तो नहीं देना है तो छोड़ दो उसको अभी. So calls in arrears कितना था मेरा? 60 रुपीज़. और कब से कब तक था? ओके, ये समझना है. 60 रुपीज़ पे 10%, 6 रुपये इंटरेस्ट नहीं लगा देंगे. इट वॉज ड्यू फ्रॉम 1st of November till 1st of March. तो 1st of March को तुमने पे कर दिया कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट. क्या था ना, चेक कर लेते हैं. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स. यस, ही पेड दैट ड्यू एंड वट एवर इट वॉज इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? 1st November से. तो नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, बस 4 महीने, क्योंकि 1st March को तो पेमेंट मिल गया. तो 4 months के लिए अगर निकालोगे तो 2 रुपीज़ आएगा इंटरेस्ट. बट देना ही पड़ेगा, 2 रुपीज़ छोड़ नहीं सकते. ओके, चलो इसको ड्यू करते हैं पहले. किससे मिलेगा हमको? सन्ड्री मेंबर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इनकम. इसको क्रेडिट किया 2. फिर इसको रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट टू सन्ड्री मेंबर्स 2 एंड क्लोज भी करेंगे इसको. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Done. All 3 entries for interest, please give it. All right. So ये सब कुछ देने के बाद तुम्हारा सब पार्ट 1 खत्म हो, ऑप्शन 1 खत्म हो गया. Let's go to option 2 of question 10. Now, in this question you have a lot of question marks. और इसमें सब में लिखना है जर्नल और नरेशन के साथ साथ. तो पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो है बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन, ओके, हाउ मेनी शेयर्स. अब देखो, दिस इज फर्स्ट कॉल मनी इज 2 per share एंड वी कैन सी 28,000 इन द अमाउंट. मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 14,000 आ जाएगा. सो फर्स्ट कॉल इज ड्यू ऑन 14,000 शेयर्स. ओके, सो प्लीज राइट द फर्स्ट ब्लैंक be covered as 14,000. फर्स्ट क्वेश्चन मार्क. फिर आ रहा है तुम्हारा रिसीट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल एंड दिस कॉल्स इन अरियर्स 2,000 मतलब कितने शेयर पे नहीं मिला? 1,000 शेयर्स, बिकॉज 2 इज द फर्स्ट कॉल मनी. सो 2,000 डिवाइड बाई 2, 1,000 शेयर्स पे तुमको पैसा नहीं मिल रहा है आउट ऑफ 14,000 जिस पे हमने कॉल किया. So 13,000 shares पे you've received. So this question mark in the narration is 13,000. And bank में कितना आएगा? Obviously 28 minus 2, 26,000 आएगा. So next is 26,000 and this one will be 13,000 shares. Okay? तो यहाँ पर मैं इसलिए सिर्फ ब्लैंक में लिख रही हूँ क्योंकि ये अभी समझा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर पूरा जर्नल एंट्री लिख देना है विद द अमाउंट्स. ऑलराइट, जो दिया है वो भी, जो नहीं दिया है वो भी, उसको अंडरलाइन कर देना, वो ब्लैंक था. नाउ शेयर कैपिटल, नेक्स्ट वन. शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब फॉरफीट हो रहे हैं. कितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं? क्योंकि शेयर फॉरफीचर में 4,000 दिखा रहा है. 4,000 दिखा रहा है मतलब ये जो 4 एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला है, दैट इज व्हाट इज यू आर क्रेडिटिंग, राइट, ऑन वट एवर फॉरफीटेड शेयर्स बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड द कॉल मनी. सो 4 पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यू था ना, तो 4,000 डिवाइड बाई 4, 1,000 शेयर्स जिस पे कॉल्स इन अरियर्स था, वो सब तो फॉरफीट कर रहे हो. सो शेयर कैपिटल will be debited with 1,000 into 6. It's not fully called up, remember, अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है. So 4 rupees जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो बाकी है. So here you have this one 6,000 rupees because it is 1,000 shares being forfeited and 6 per share called. ये उधर डेबिट हो गया और कॉल्स इन अरियर्स हो गए. देखो ये शेयर कैपिटल में हुआ, I'm telling you, and calls in arrears will be credited the entire 2,000.
and how many shares are being forfeited? 1000 shares. Fine, I've gone in that order. Confusion तो नहीं हो रहा है? So 1000 shares of 10 each forfeited for non-payment of first call. अब यहाँ ₹10 each लिखा है, इसका लिए नहीं कि 10 डेबिट कर रहे हैं. 10 each तो नॉमिनल वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू थोड़ी लिखा हुआ वहाँ पर. Shares second and final call 52,000 will be due on how many shares? सेकेंड कॉल कितना है? 4 पर शेयर. 4 पर शेयर डिवाइड कर दो 52, 13,000. ऑब्वियसली 1000 शेयर तो हमने फॉरफिट कर दिया ना, तो ये वाला है ड्यू ऑन 13,000 शेयर्स. सेकेंड कॉल रिसीट हो रहा है, फिर कॉल्स इन अरियर्स हो गए 10,000, तो 42,000 मिला होगा. 52 माइनस 10,000, 42,000 इज रिसीव्ड इन द बैंक एंड दिस इज ऑन रिसीव्ड ऑन हाउ मेनी शेयर्स? कैसे पता चलेगा? कॉल्स इन अरियर्स है 10,000 और पर शेयर 4 रुपीज ड्यू है. 10,000 by 4, ठीक है. 10,000 टोटल कॉल्स इन अरियर्स है, एक एक पे 4 रुपया नहीं मिला, तो 2,500 शेयर्स पे नहीं मिला. देयर आर 2,500 शेयर्स ऑन विच यू हैव नॉट रिसीव्ड द कॉल्स इन सेकेंड कॉल. तो कितना मिल गया? 13,000 ड्यू था ना, 13,000 शेयर्स पे था ड्यू, 2,500 पे नहीं मिला, 10,500 शेयर्स पे मिल गया फाइनल कॉल. ठीक है. देन फॉरफीट हो रहा है. शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कॉल्स इन. नाउ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ये जो फाइनल कॉल नहीं पे किया है, कितने शेयर्स? 2,500 शेयर्स. और कितना है इसमें? शेयर कैपिटल डेबिट कितना होगा? पूरा ही कॉल्ड अप है ना अभी तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड 2,500 शेयर्स हो रहा है फॉर फिर 10 रुपीज, 25,000 डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. एंड देन कॉल्स इन अरियर्स तुम्हारा दिख ही रहा है 10,000, तो रिमेनिंग कितना है? शेयर फॉर फीचर 15,000. ठीक है. तो शेयर फॉर फीचर में आ गया 15,000. ये हो गया तुम्हारा फॉर फीचर एंट्री. एंड कितना ये वाला ब्लैंक है? हाउ मेनी शेयर्स? 2,500 शेयर्स आर फॉरफिटेड. तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट हो गए? पहले 1000 और अभी 2,500. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड आर 3,500. रीइश्यू एंट्री. बैंक शेयर फॉरफिचर एंड शेयर कैपिटल. अभी 1,500 forfeited shares, being 1,500 forfeited shares, including those on which the first call was not received. Those on which first call was not received. First call, those मतलब all of those. 1,000 shares ऐसे थे ना जिसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो हमने forfeit कर दिया था, तो वो सारे 1,000 shares इसमें है. प्लस ये जो 2,500 shares अभी forfeit हुए उसके भी 500 shares है. Total how many shares are we reissuing? 1,500 shares. At what price? 6 per share. तो बैंक में कितना आएगा? Should I continue writing here? अब okay, let's see here. अब बैंक में कितना आएगा? 1,500 into 6 per share. So 9,000 आ जाएगा. Alright? 9,000 is the first. Next question mark. उसके बाद शेयर फॉरफीचर 6 पर शेयर फुल्ली पेड अप है तो 4 रुपीज डिस्काउंट दिया होगा, तो 4 into 1,500 कितना होगा? 6,000 will be debited to share forfeiture. Share forfeiture is 6,000 और शेयर कैपिटल में तो पूरा 15,000 जाएगा ही. Entire thing is called up. Okay, मतलब considered fully called up. तो ये हो गया तुम्हारा 15,000. 10 पर शेयर 1,500. फाइन. अब लास्ट में आ जाओ शेयर फॉरफीचर वाले ट्रांसफर एंट्री में. यहाँ पे तुमको ये देखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन जितना अवेलेबल है मेरे पास और मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया उससे हम ट्रांसफर करते हैं. प्लस इसमें क्या है? 2 टाइप ऑफ शेयर है. वन, those 1,000 shares on which I had forfeited because of non-payment of first call, और फिर अदर कैटेगरी भी है जिसको फाइनल कॉल के पेमेंट पे नहीं. तो दोनों का अलग अलग है. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड विल बी
प्रॉफिट्स अवेलेबल ऑन दोस 1000 शेयर्स। मेरे पास कितना है, 1000 शेयर्स में मैंने 4000 forfeit किया था। इफ यू सी द थर्ड एंट्री, forfeiture एंट्री, शेयर forfeited अकाउंट कितने से क्रेडिटेड है, 4000। तो मेरे पास 4000 है ना वहाँ पे, वो 4000 हम पूरा यूज कर सकते हैं बिकॉज वो 1000 शेयर्स पूरा री इशू हो गया है, राइट। सो ऑन दोस 1000 शेयर्स वी हैड forfeited 4000 and I can use the whole of it. So I have taken it there. But on the next 500 shares, how much will be available? I have forfeited on these 2500 shares 15,000. If you see the entry, 15,000 नहीं, कितना हमने, सॉरी 15,000 तो शेयर हाँ forfeiture में है। तो शेयर forfeiture में हमने 15,000 डाला था जब हमने ये 2500 शेयर्स forfeit किया। अब उसमें से मेरे पास कितना अवेलेबल है ये बताओ मुझे। 15,000 was for 2500 shares, so out of that 500 shares I'm reissuing, this is available for discount. Actual discount कितना दिया मैंने at the time of reissue, 6,000। चलो कैलकुलेट करो, ये 4000 ये प्लस 3000 माइनस 6000, तो 1000 बचता है ट्रांसफर टू शेयर forfeited टू कैपिटल रिजर्व। दोनों अमाउंट सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो नरेशन, यहाँ पे नरेशन है, ये तो नरेशन पता है तुम्हें, दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, forfeited शेयर्स, ऑलराइट। री इशू के बाद जो forfeited शेयर्स पे हुआ, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। डन। हाँ, और रुको एक वर्ड 9 नंबर हुए ना, देखा एक छूट जाता है एक नंबर अभी। ओके, दिस इज बी। क्वेश्चन 10 में एक बी सब पार्ट भी है, ए सब पार्ट, बी सब पार्ट। तो इसमें क्या किया, यू हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी शेयर्स, नो, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच द कंपनी कैन री इशू दीज शेयर्स। मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच द कंपनी कैन री इशू, मतलब जितना हमको पैसा मिलता है, वट एवर वी हैव forfeited, okay, that is the amount available with me। तो ये जब मिनिमम अमाउंट ऑफ री इशू है, तो ये कितना होगा, जो अमाउंट मुझे नहीं मिला उतना तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, करेक्ट। वट एवर अमाउंट आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स आई मस्ट बी रिसीविंग, ऑलराइट। सो हाउ मच इज दैट, तो क्या है, क्या जितना हमको मिल गया है उतना तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं, forfeiture में डाल देते हैं ना, वट एवर आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड आई ट्रांसफर टू forfeiture, क्रेडिट टू forfeiture, तो वही हम डिस्काउंट के लिए यूज कर देते हैं। तो बाकी तो मुझे लेना पड़ेगा, तो जितना मुझे नहीं मिला उससे मतलब है। हाउ मच हैव आई नॉट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स, these shares the total nominal value was 100 and it is said you have not received allotment money of 30 including premium was 10 and we never take here, you know, what is the meaning including premium, वो सब नहीं लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 rupees is the nominal value out of 30 which is for allotment, okay, and then फाइनल कॉल ऑफ 40, फाइनल कॉल ऑफ 40। तो ये टोटल मुझे 60 रुपीज नहीं मिला है, आई हैव रिसीव्ड 40 आउट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ऑलराइट। नहीं मिला है तो नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, तो अब ले लेते हैं। नहीं मिला तो क्या हुआ, अब ले लेते हैं। तो अभी मिनिमम री इशू प्राइस हो गया तुम्हारा 60 रुपीज़, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट हम 40 दे सकते हैं, मेरे पास 40 forfeiture में है, और ये हो गया तुम्हारा minimum reissue price, okay। So I hope you liked the presentation and the explanation. Please do share, subscribe and like. Thank you so much, and in my next video I'll try to finish off with section B, okay। Stay tuned. Thank you.